ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಣ್ಯರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು, ಹೊಸ ಹೂವಿನ ಕಂಪು ಹಸಿರು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೊರಳೆಂಪು ಹಸಿರು, ಹಸಿರು ಹಸಿರುಳೆಯುಸಿರು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಚೇತನದ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಬಾಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಆ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲ ಕಾಲಗಳ ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿದಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ, ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ. ಸದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣ. ಅಕಾಲೇತಿ ಚ ಸಿಖ ಸಂತಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇತಿ ಕೇಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕುಮಾರಾಃ ಸ್ವಾಮೀತಿ ಮಾತೇತಿ ಪೀತೇತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತೆ ಜಗದೀಶಿತಾರ ಏಕ ಏವ ಪ್ರಭುರದ್ವಿತೀಯಃ. ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದುರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದುರ್ಗೆ ಮಾತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ಗೆಯ ರೂಪವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದುರ್ಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಈ ದುರ್ಗೆಯ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಜನ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗೆಯರಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗೆಯರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ
ದುರ್ಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಮತ್ಯಾವುದೇ ರೂಪವನ್ನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದುರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಇದೆ ಆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದುರ್ಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹಾಗೆ ದುರ್ಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದುರ್ಗಾ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಮುಖರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಸಶಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ದುರ್ಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಯರು ಒಂದಾದಾಗ ಯಾವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಬಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ನಿದರ್ಶನ. ಇಂಥ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸೇರೋಣ. ದುರ್ಗೆಯ ಶಕ್ತಿ ಹಬ್ಬಲಿ ಹಬ್ಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಟ್ಟಿ ಮೇ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋಣ. कल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते. रत्नाकर धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजश्री रत्नाढ्यं वंदे भारत मातरम. परम कल्याणमय भगवत शक्ति आराध्या भारत माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. सम्माननीय मंच, उपस्थित समस्त मातृशक्ति दुर्गा स्वरूपा बहनों को मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. और आज समग्र भारतवर्ष में जो विकट परिस्थिति चल रहा है, जब माँ, जब नारी, जब देवी अपनी शक्ति को भूलने की गलती कर रही है, तो उसी समय गुलबर्गा में दुर्गा दौड़ के नाम से हजारों की संख्या में दुर्गा शक्ति, मातृशक्ति जागृत होकर समाज को एक दिशा देने के लिए एकत्रित हुए हैं. पुनः सभी को मैं अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ. और आज जो नवरात्रि चल रही है, आज यहाँ प्रथम दिन मानते हैं क्योंकि 3 दिन, लेकिन नवरात्रि प्रतिपदा से शुरू हुई है. ये 9 दिन की जो नव दुर्गा की जागरण में हम अपनी शक्ति को जगाते हुए भारत को परम वैभवशाली बनाएंगे, भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे. ये संकल्प यहाँ से लेकर हम जाएंगे. ये दुर्गा दौड़ क्यों, उसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि आज समाज में हम देख रहे हैं, आज परिवार में हम देख रहे हैं, आज देश में हम देख रहे हैं, ये भारतवर्ष में 100 करोड़ हिंदू होते हुए भी आज हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं. इतिहास साक्षी है, हजारों वर्ष तक हमने पराधीन रहे. और ये भारतवर्ष कैसा देश है हमारा, सोने की चिड़िया कहने वाली है भारतवर्ष. धन संपदा से परिपूर्ण था ये भारतवर्ष. विधर्मी कुचक्री कि मन में जो लालसा आई, उस लालसा के कारण इस भारतवर्ष के ऊपर उन्होंने आक्रमण किए, भारत को लूटे, भारत को बांटे, भारत को काटे. और भारतवर्ष की जो मान बिंदु थी, जिसके कारण भारतवर्ष संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु के नाते पूजा पाता था, मातृशक्ति उसकी सम्मान के हनन किए. ये अखंड भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिए, गौ माता की हत्या करने लगे, हजारों की संख्या में मठ मंदिर को तोड़ने लगे और हमारे धर्म ग्रंथ को भी जलाने लगे. नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार अगर हम अवलोकन करेंगे, एक बार इतिहास में चले जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया, वो आग
3 महीने तक जलने लगा। हमारे धर्म ग्रंथ में जो प्रेरणा थी, जो विज्ञान था, जो कला था, जो संस्कृति था, वो सब कुछ जलकर राग हो गया। लेकिन आज हमने पुनः संकल्प लिए हैं, भारत को जगाना पड़ेगा, तो भारत को बचाना पड़ेगा। भारत के संस्कृति, ऐतिह्य, परंपरा को बचाना है तो उसमें मातृशक्ति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ये नवदुर्गा, ये भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर नारी को देवी स्वरूप मानकर पूजा किया जाता है। कभी दुर्गा रूप में, कभी लक्ष्मी रूप में, कभी सरस्वती रूप में, तो कभी महाकाली के रूप में हम यहाँ पर पूजन करते हैं। और ये पूजा के हेतु हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुषों ने हमको शिक्षा देकर गए हैं। और हम अपने घर में यही मनोभाव लेकर आगे बढ़ते हैं कि हम हमेशा मातृदेव भव कहते हैं। पहले जब हम घर में बच्चों को कुछ सिखाना शुरू करते हैं तो मातृदेव भव, माँ देवता की समान है, पितृदेव भव, पिता भी देवता है, आचार्य देव भव, यानी गुरु भी तुम्हारे, आचार्य भी तुम्हारे देवता के समान है। और उसके साथ साथ हम कहते हैं अतिथि देव भव, ये शास्त्र पुराण में लिखा था, उसको हमने अनुकरण किए। लेकिन आज की परिस्थिति, आज हमारे बच्चे, आज हम भी स्वयं अतिथि को भूल गए, हमने अपने पूर्वजों को भूल गए, हमने माँ पिताजी को देवता कहना भूल गए। कारण क्या है? ना पश्चिमी संस्कृति को अनुकरण करते हुए, पश्चिमी संस्कृति को अनुसरण करते हुए, उनको ही फॉलो करते हुए हमने अपने स्वाभिमान को भूल गए, हमने अपनी ऐतिह्य परंपरा को भूल गए। आज क्या है? माँ भी, हम कहते मातृदेव भव, माँ देवता के समान है। और एक बात कि माँ बच्चे के प्रथम गुरु होता है। माँ ही बच्चों की उंगली पकड़ते हुए परिवार के हर सदस्य के साथ एक परिचय करवाता है और ये संस्कार संस्कृति को जीने की शिक्षा देती है। लेकिन माँ आज भूल गई है अपने कर्तव्य को, हम अपने सिर्फ अधिकार की बात करने लगी है। तो देश कहाँ से, संस्कृति कहाँ से, संस्कार कहाँ से जीवित रहेगा? अभी ये जो नवरात्रि चल रही है, ये नवरात्रि में हम सब गरबा करने के लिए जाते हैं, गरबा करते हैं तो रात भर जागरण करते हैं। पहले हमारे यहाँ था कि रात को जागरण करते हुए माँ की भजन गाते थे, दुर्गा मैया को रिझाने के लिए उनकी भजन गाते थे, उनको स्मरण करते थे, रात भर जागृता करते हुए जागृत स्वयं रहकर माता की शक्ति को अपने अंदर प्रवेश करवाते थे। और माँ की जैसा मैं बन पाऊं ये संकल्प लेकर हम चलते थे। माँ दशभुजा दुर्गा जी के सारे शक्ति, जितने असुरों को उन्होंने संहार किए, जितने रूप उन्होंने लिए, ये सारे चीजों को हम अपने मनन चिंतन करने के साथ साथ अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे तो परिवार भी अच्छा बनेगा, समाज भी अच्छा बनेगा, देश भी अच्छा बनेगा, ये विश्व भी अच्छा बनेगा, सृष्टि भी अच्छा बनेगा। व्यक्ति से सृष्टि तक हम कल्पना लेकर चलते थे। हम कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये सारा वसुधा हमारे कुटुंब के तरह था। इसलिए हम और क्या कहते थे? न कृणवन्तो विश्वमार्यम, ये परिवार हमारा, विश्व, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार की तरह है और ये परिवार की कल्याण करना हमारा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य कैसे हम आगे ले जाते थे? ना कृणवन्तो विश्वम आर्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने के लिए संकल्प लेते थे, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए संकल्प लेते थे। और उसके लिए हम क्या कहते थे? ना सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब में हो सद्भावना, निस्दिन प्रतिपल हिंदो करता, सबकी मंगल कामना। हम क्या कहते थे? ना पूजा करते हुए आज भी मेरी माँ कहती है, आज भी हमारे पंडित कहते हैं मंदिरों में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये प्रकार भावना हम लेकर चलते थे। आज भी इतिहास साक्षी है, हमने कदाचित
कभी विदेशियों पर आक्रमण नहीं किए, किसी देश में हमने गए नहीं किसी को लूटने के लिए, किसी को बांटने के लिए। हम गए तो एक महत्व की विचार लेकर गए कि सभी जियो और जीने दो। हमारा संस्कृति भी यही सिखाता है। इसलिए मेरे माँ बचपन से मुझे चींटियों को दाना डालना, चिड़ियों को पानी पिलाना, गौओं को दाना देना और अनेक प्रकार के छोटे छोटे बातें मुझे सिखाती है कि स्वयं जियो और जीने दो। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। लेकिन आज ये सब बिखर गया है, क्योंकि 1000 वर्ष की पराधीनता के कालखंड में हमने अपने स्वाभिमान के साथ साथ अपने संस्कार संस्कृति को तो भूले हैं, अपनी परंपराओं को भी भूल गए हैं। आज ये जो नवरात्रि में हम गरबा करते हैं, गरबा जो हुआ शुरुआत कहाँ से हुई? ना गुजरात से शुरू हुई। ये जो 9 दिन नवरात्रि है, 9 दिन तक युद्ध करते हुए माता महिषासुर मर्दिनी जगज्जननी जगदम्बा ने महिषासुर को समाप्त किए और महिषासुर को समाप्त करने के बाद, हत्या करने के बाद 10वीं के दिन किए तो संपूर्ण समाज खुशियों से आनंद से भर गया और सारे समाज ये गरबा करने लगा। आज जो 2 छोटे छोटे लाठी, छोटे छोटे लकड़ी लेकर, गरबा की डंडा लेकर हम गरबा करते हैं, वो ऐसा नहीं था। हमारा परंपरा कैसा था? माता दुर्गा के जैसे अपने हाथों में शस्त्र लेकर हम संकल्प लेकर खुशियां मनाते थे, आनंद मनाते थे। लेकिन आज वो परंपरा नहीं है। आज हमने दुर्गा दौड़ किए हैं। मेरा निवेदन है कि अगले साल जब हम करेंगे, सबके हाथ में एक एक शस्त्र होना चाहिए। हम शस्त्र की पराकाष्ठा दिखाते हुए, अपनी शक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ उपस्थित सारी माताओं को, बहनों को, कि हम गरबा करते हैं, लेकिन गरबा में हम भूल जाते हैं अपने कैसे वेशभूषा होना चाहिए, वेश परिपाटी हमारा कैसा होना चाहिए, कपड़ा हमारा कैसा होना चाहिए। अरे कपड़ा तो तन को ढकने के लिए पहना जाता है, कपड़ा तो लज्जा निवारण के लिए पहना जाता है, कपड़ा तो हम अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए पहनते हैं, तन को ढकने के लिए पहनते हैं। लेकिन गरबा करने के लिए जाने वाली बहनें और गरबा की आयोजक कौन कौन है, उसके बारे में भी हमको जानकारी लेना चाहिए। और गरबा हमको सिखाने वाले कौन है? हिंदुओं की